So dear learners, once again, welcome you all to this second page of BAG 1, your English compulsory class, that is BEGL 136. And I'm sure, again, like your BGLA 135, BGLA 136 will be much more helpful for you so far as your examination is concerned, as well as your day-to-day life also. And once again, I want to tell you one thing, that this term and examination of your June will be conducted during September, but you people will not be appearing this examination. You people will be only entitled or allowed to appear during December. So we thought it will be better to complete your this second part of your first year classes, that is your BGLA 136 and other 132 papers of your history, economics and political science. So once again, I welcome you all to this digital platform. And again, your same Mr. Ganeshwar Tripathi will be your counselor for the next 6 days for your whole BGLA 136 class. Now I welcome Mr. Ganeshwar Tripathi to this platform, and I hand over this platform to him to continue his class. Ganeshwar sir. Good afternoon. Am I audible to you, you all? Yes, sir. Okay. Good afternoon, sir. So, like 135, BGLA 135, let us start with 136. This is much more interesting concept, English at the workplace. हमें exactly समस्ते पढ़ुचु पढ़ी सारा पर कौन करवा चाकरी करवा ना तो चाकरी कला बेलू चाकरी खोजाठू आरंभ करी एप्लाय करवा जॉब एप्लिकेशन लिखा इंटरव्यू प्रिपेयर करवा इंटरव्यू दबा चाकरी करने को जीवा चाकरी करने को गला बेले कौन केमती करवा सेठी केमती रहिबा कौन ठिया हवा का संगे केमती कथा हवा दीज आर ऑल द क्लासेस इंग्लिश एट वर्क प्लेस चारटा ब्लॉक अच्छी तुम चारटा ब्लॉक रे टोटली से कथा ही कह पेपर रे एडवर्टाइजमेंट केमती खोजिबा टू सर्च फॉर ए जॉब देन अप्लाइंग फॉर ए जॉब then preparing for the interview, and then after interview when you are hired for a company or when you got the job, what you have to do. What you have to do there, official decorum, official work ethics, a separate chapter achhi. So we will be discussing all these things stepwise, and now I have to start with some big personalities. Bill Gates. So let us listen to a big man's profile. William Bill Gates. William Bill Gates is the principal founder of Microsoft Corporation, the worldwide leader in software services and solutions that help people and businesses realize their full potential. Microsoft had revenues for 39.79 billion US dollar for the fiscal year ending June 2005 and employs more than 61,000 people in 102 countries and regions. So born on October 28, 1955, Gates grew up in settled with his two sisters. Their father, William H. Gates, too, is a attorney. Their late mother, Mary Gates,
was a school teacher, University of uh, Washington Regent, and chairwoman of United Way International. Gates attended public elementary school and the private Lakeside School. There, he discovered his interest in software and began programming computers at the age of 13 only. That is the point what we have to go for the Gates foresights and his vision for personal computing have been central to his success of Microsoft and the software industry. Thing is, what you should do, you should first aim one thing, have the goal, have a proper goal, and do your best. It doesn't matter that what, where from you have come, you have attended a big school or not. You do these things. If you have got more things, more facilities that I can say. But the thing is, if you have single-minded devotion, determination towards devotion and determination towards the goal, what you want to do it in life. In 1999, Gates wrote Business at the Speed of Thought. See the name of the book, Business at the Speed of Thought, a book that shows how computer technology can solve business problems in fundamentally new ways. The book was published in 25 languages and is available in more than 60 countries. Business at the Speed of Thought has received wide critical acclaim and was listed on the bestseller list of the New York Times, USA Today, and the Wall Street Journal and Amazon.com. Gets his previous book, The Road Ahead, published in 1995, held the #1 spot on the New York Times bestseller list for 7 weeks. See, 7 long weeks the book was there, but the thing is, you should know what you have to do from the very beginning. It is so by telling you the profiles, you will find one Bill Gates, another one is from sports category. Sania Mirza is there. He sees her profile is also given to you for a betterment. It is because of the fact that you will learn when you read about these great men and their lives, their struggle, what they do, how they reach the place they are there. So it helps us to know in detail, and it gives us a confidence that we can also do like them. So Sania Mirza, you know, all of you are rather, you see. Hi, I am Sania Mirza. She is telling it is in first person account. Sania Mirza is speaking for herself. She is speaking about herself. She is speaking about her life rather for you. Hi, I am Sania Mirza from Hyderabad, India. I was born on November 15th, 1986. I am a tennis player and my dream is to win the Wimbledon singles championship one day. I was introduced to tennis at the age of 6, but my coach refused to allow me to play when he saw me. When he saw my game, he was quite amazed. I have reached the position at which I am today only because of my hard work and dedication and the support of all my family members. When I decide to do something, I leave no stone unturned to get success in it. This is one of the most important lines. You should keep it in mind. When I decide to do something, I leave no stone unturned to get success in it. अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो ऐसे काम करना कि नो स्टोन अनटर्न मीन्स जितना भी पॉसिबल, जैसे हम बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा हमारे से, don't speak like that. Try to do the best, give your best, because you don't know what you can do. The thing is, we till now we don't know how much. If ever I am now asking you a question that how much time do you devote to your studies, आप कितने टाइम पढ़ते हो, कितने घंटे
आप में से कोई नहीं बोल पाएगा कितना घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि हम एग्जाम के लिए खाली पढ़ते हैं। जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाता है, प्रोग्राम निकल जाता है, तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तब जाके बोल पाएंगे कि 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, या नहीं तो नहीं पढ़ पाते हैं। बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, कोई हमें बताता नहीं, कोई आइडिया है नहीं। दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करते हैं, हम हमारे से किसी दूसरे के ऊपर दोष डाल देते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं होता, ये होता तो ये कर लेते। So by the way, Sania Mirza is going to tell you that you see, you listened about Bill Gates. Bill Gates was trying to do the programming at the age of 13 only. जिस एज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ करने के ये में नहीं होते हैं, हमारे फैमिली भी ऐसे नहीं सोचता है। एंड again to tell you one, I can remember that Rabindranath Tagore, the only Indian to get the Nobel Prize in literature. So his first book in publishing came into being when he was only 7 years old. That is the thing. What you have to do is, you see, in February 2005, I became the first ever Indian woman to win a WTA title by winning the AP Tourism Hyderabad Open, defeating ninth seeded Elona Bondariko in the final. Often I sit back and reflect on my strengths and weaknesses. That is again another thing. Often I sit back and reflect on my strengths and weaknesses. By doing so, I am able to think of the strategies to overcome my weak areas. That is the thing. Subsequent reflection, आप खाली पढ़ लोगे, सुन लोगे किसी से, या कोई आपके बता देगा आपको कि ये है क्वेश्चन, ऐसे लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर अवेलेबल है, दैट डजंट मैटर। ये या एग्जाम में पास करना, ये तो क्वाइट इजीली वन कैन डू दैट। सो द थिंग इज, व्हाट यू हैव टू डू, you have to reflection means you have to put your thought into. आप थोड़ा सोचो, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कि हार्डवर्क क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होता है, बनना क्या चाहते हैं आप। जैसे कि आप इग्नू में कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए, आप सर हमें कुछ पता नहीं चलता है, ये बताइए वो बताइए, बट ट्राई टू थिंक, बिकॉज आजकल के टाइम में अगर आप डिजिटल की दुनिया में आकर के आपको अगर बोलेंगे कि नहीं, या हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो nobody is going there to help you. So the point is, you have to create the thing. By that way, I am not telling you that we are not going to help you. The thing is, you have to do the maximum labor. आपको क्या बनना है, क्योंकि बनना तो आप करेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, हम कुछ लेवल तक पहुंच गए हैं, हम वहां आएंगे आपके साथ ये शेयर कर देंगे कि देखिए आप ये बढ़िया है, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना कोशिश कीजिए, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ आएगा आप लोगों के लिए कि जॉब एप्लीकेशन कैसे, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद कैसे लिखना चाहिए, मतलब जो प्रोफाइल बनाना है तो जॉब एप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे कि जो जॉब एप्लीकेशन देख के आपको कोई इन्वाइट कर लेगा कि चलो आओ इंटरव्यू के लिए आ जाओ, या रिटन टेस्ट के लिए आ जाओ, या जॉब के लिए आ जाओ। ऐसे कोई टेक्निक हम बता सकते हैं, लेकिन काम तो किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मतलब कि एक सैंपल या एक एग्जांपल आपको अगर कहीं से बुक से मिल जाता है, कहीं से वेब से मिल जाता है, या कोई टीचर से, काउंसलर से मिल जाता है, तो आप ऐसे 5-10 टू खुद प्रैक्टिस करो, तब जाके यू कैन डू दैट। दैट इज व्हाट सानिया सेज, दैट व्हेन आई डिसाइड टू डू समथिंग आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट सक्सेस। तो सक्सेस एक फितरत होना चाहिए आप लोगों का। सक्सेस ऐसा नहीं कि ये करने से मिलेगा, नहीं, ये मेक इट एवरी डे यू रीड एज एवरी डे इज एन एग्जाम डे फॉर यू। आप अगर उसी हिसाब से पढ़ोगे कि हर दिन जो भी है, मान लो कल एग्जाम हो जाएगा, तो आप कैसे करोगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं जो आएगा जैसे आएगा वैसे नहीं। बट माय पॉइंट इज टू टेल यू दैट व्हेन यू वांट टू, when you are joining this to BA course, you have certain definite aim that BA करने के बाद, इग्नू में ये करने के बाद मुझे ये बनना है, कि वो बनना है, कि एक प्रमोशन मिल जाएगा, कि जॉब कर सकूंगा, कि थोड़ी बहुत कोई नॉलेज के लिए भी कर रहे हैं। तो आपके पास जो एम है, उसी एम के पीछे आपको जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ दौड़ना पड़ेगा। you will have to visualize, you will have to see, you will have to see your goal, your dream ahead of you always. Then only you will succeed. All these other things will be supporting you. You will find if you have a single-minded devotion. Another one, this at this point I can tell you that you have a
course, there you have to write about one person, that is the chairperson of Infosys India, that is V. Narayan Murthy. If some of you have the books, और if आप अगर आप ये ज्ञान कोश से डाउनलोड करके अगर पढ़ रहे हैं 136 का बुक, पेज नंबर 14 ब्लॉक 1 में ये है उनके बायो स्केच, थोड़े बहुत पॉइंट्स दिया है। दो एग्जांपल आप लोगों के लिए है, दो एग्जांपल, एक बिल गेट्स का एग्जांपल है और दूसरा जो है सानिया मिर्जा का एग्जांपल है। दो एग्जांपल के साथ you will have to go for one answer, answering Narayan Murthy's life sketch, bio sketch. Bio sketch means, bio means life, sketch means facts about life, and आपको ये करना है कि उनके लाइफ के बारे में जो डाटा आपको बताया जाएगा उसको लेकर के you will have to go for one paragraph, writing one paragraph about any great man you know. तो to start with आप नारायण मूर्ति को भूल जाओ अभी, आप ऐसे करो अपने पिताजी के बारे में, अपने एम डिसीजन के बारे में, या पास में कोई भी टीचर आपको जो अच्छा लगता है, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपको कोई टीचर अच्छा लगता है, कहीं से पढ़े हैं, उन्हीं के बारे में जो डाटा आपको पता है उसको आप एक पैराग्राफ करके लिखो कि उसका नाम क्या है, क्या क्या आपको पता है, इम्पोर्टेंट थिंग, इनके क्या अच्छा लगता है तुमको, ऐसे माने उसके बारे में कि जिनकी पढ़ाती भल पढ़ाती बा से भल कथबार्ता करी जानती, भल ड्रेस सेंस अच्छी, बिकॉज दैट इज द थिंग एज वी आर गोइंग ऑन टू read more about these things, this unit, so you will think about the qualities that is there. Study is somewhat different, you will have to go for some qualities, that is some personal qualities. I am pointing out to you that if you have all these qualities, then in a workforce three things are there we want to see, और कोई भी कंपनी आपको जब जॉब देता है तो ये तीन चीज देखता है, तीन क्वालिटी आप में ढूंढेगा। तो be sure from it that as this particular block or 136 is for your betterment only. It is not, it is giving you a life skill. It is not getting good marks in the exams. It will automatically, you will get it. But the thing is, what you will learn from here, you will have to put it into action in your days to come. तो आगे चल के आप जब एप्लीकेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे जॉब एप्लीकेशन, जॉब पाने के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट को ढूंढोगे, तो क्या क्या क्वालिटीज आप में होना चाहिए। सो थ्री थिंग्स आर देयर, वन इज योर पर्सनल क्वालिटीज, देन योर सोशल क्वालिटीज एंड देन प्रोफेशनल क्वालिटीज। कभी कभी ऐसा होता है, फर्स्ट बार कोई चला जाता है, मैं आई कैन टेल यू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। सो ही सेट फॉर द वाइवा ऑफ आईपीएस, आईपीएस के लिए वाइवा उसका चल रहा था, तो उसके लिए एक ही क्वेश्चन था खाली, सपोज यू हर्ड about a riot in some part of your district and means over phone you got it, कि जने फोन करले जे तमो जिल्लार कोनोसी गोटे पार्ट रे होची दंगाटी होची, तमरो इमीडिएट रिएक्शन, व्हाट विल बी योर इमीडिएट रिएक्शन। सो he said that I will rush to the spot of riot, बस ओवर। सी माने he got worried, से डरी गला, मैंने केमती हबो, मु तो कहि देली खाली जेमती हबो मु सीधा दौड़ी करी पळैली, से पळैली आउ तंको किछि क्वेश्चन करा गलानी, ओके यू मे लीव, से पळैली, से भाबिले गला ए चाकरी गला आउ तो मिलिबो नै, भागरे गोटे चांस मिलथिला, एमती बोथे कहबा कथा नुओ, किंतु से सिलेक्टेड हेले, जेतबेले गले एवं जो ट्रेनिंग चलला, जे ट्रेनर आसिले से कहले आप में से कोई एक है जो बोला था कि रियट का सुनते ही एक एसपी होने के नाते मेरा ये पहला काम रहेगा कि मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचूंगा पहले। तो अदर्स ही सेड, द ट्रेनर सेड दैट वहां जाके कुछ लोग ऐसे भी बोले थे कि हम वो कॉल जो है फेक है या सच है उसको पहले पता करेंगे, फिर फोर्स साथ में फोर्स लेके जाएंगे, क्या पता तो रियट वाले क्या कर लेंगे क्या क्या। सो दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स ही सेड। द फर्स्ट थिंग, एज ए पुलिस ऑफिसर यू शुड हैव ए बिग हार्ट, ब्रॉड हार्ट, दैट आई मीन टू से यू शुड हैव करेज फर्स्ट। सो रियट वाले तो रहेंगे, रियट वाले क्या क्या रख के रहेंगे, वो ओपन रहा होगा, वेपन उनके पास रहा होगा, तो कैसे जाऊं, फोर्स साथ में जाएंगे तब जाएंगे। तो एसपी, अगर एसपी जो है तो वो अगर जाते हैं कभी, तो उनके पीछे ऑटोमेटिकली फोर्स तो जाएगा साथ में, आप बोलेंगे तब भी जाएगा, नहीं बोलेंगे तब भी जाएगा। द पॉइंट इज यू मस्ट हैव द करेज। सो व्हेन वी आर ज्वाइनिंग फॉर पुलिस मींस वी मस्ट हैव द करेज। अगर मैं जब पढ़ाने के लिए आता हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे लोगों को ये चाहिए होता है, तो इस हिसाब से वो हो सकता है।
तो जैसे भी कोई तुमको जॉब देगा या आप जब इस सिनारियो में जा रहे हो, वर्क प्लेस, द टॉपिक यू रिमेंबर द बुक्स नेम इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। तो हम ये बोल रहे हैं कि वर्क प्लेस में आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों में क्या क्वालिटीज, क्या व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज दैट दे विल हैव टू गो फॉर। सो द पॉइंट इज, so the point is basically they will stand for personal qualities like you must be punctual, आप पूरा पंक्चुअल होना पहले, देन क्रिएटिव, समथिंग न्यू, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ऐसे नहीं, कुछ नया चीज तुमको करना पड़ेगा। सो क्रिएटिवली समथिंग न्यूली यू हैव टू गो फॉर। देन मोस्ट क्रिएटिव, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन खुद को करना पड़ेगा, मीन्स यू मस्ट बी डिसिप्लिन। Someone is going to tell you that you should be disciplined like this, it will not matter, it has no meaning at all. You must discipline yourself कि मुझे 10 घंटा काम करना है, मुझे 5 घंटा काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं करना है। So you have to do that. So make yourself disciplined. Make yourself disciplined. And then second is your soft-spoken. You must be. You should not at workplace remember that thing that चिल्ला के आप किसके साथ बात करोगे तो काम नहीं बनेगा। It doesn't matter. Once you start yelling out, yelling, Y-E-L-L, yell मतलब कि चिल्लाना, चिल्लाते हुए किसी के साथ हम बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा। Even if you are irritated, but be cool, because you remember one thing that you are doing, you are at the workplace and somebody is following you. You hold in the workplace, you hold one thing, but is you represent your company. Suppose you are working, means suppose I am in a college, so my dress sense, my talking, my way I deal with others, my the way I tell you the things, I am actually now at present, if ever I am telling you in particular, so I may tell you that as you listen to me, and when I am presenting for IGNOU as a counselor. So I hold the prestige of IGNOU with me. That should be the criteria. That should be your idea in your mind when you go for, when you are working for, and when nobody is watching. It doesn't mean that if somebody is watching, you will be careful, you will be punctual, you will be disciplined. And if somebody is not watching, so nowadays I may tell you that nobody is in digital days now as it is. So we are living in a globalized world and nobody is watching you. You have to be your own guardian. That is the thing. You should be helpful, you should be firm and hardworking. You see, hard work and dedication. These two qualities, they basically go for that. So the first thing is, with this, in this chapter, we actually listen to the two profiles. One profile is of Bill Gates, another is of Sania Mirza, told by Sania Mirza herself. And then there is a about the biosketch, the important points of V. Narayan Murthy, the chairperson of Infosys India. And then some of the qualities, we are discussing about the personal qualities that you have, and then social qualities. But social qualities, that means if you are personally good, you can be socially good, because when we are working for a company, for any organization, so we should be a role model. The first thing is, be the role model for others, be exemplary for others. आपके चाल ढाल, रहन सहन, बातचीत और आप कैसे काम को डील करते हो, ये you should be the role model for others. Then you must be quite friendly, team leader. ऐसे नहीं कि आजकल कोई अकेला आदमी, एक मैं अकेला सब कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि साथ में जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, जो जूनियर्स रहेंगे आपके साथ, टीम मिलेगा आपको हर बार। बहुत बार आपको ऐसा होगा कि आपको टीम के साथ लेना पड़ेगा, दो चार आपके साथ जो रहेंगे उनके साथ आप फ्रेंडली बिहेव करो और टीम को साथ के लेकर के आगे बढ़ो। तो टीम लीडर, आप में से हर किसी में से एक लीडर होता है। तो लीडर होने से क्या होता है, यू हैव टू थिंक द थिंग्स फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। लीडर का सबसे बड़ा बात ये होता है कि वो लीडर जो होता है वो दूसरे लोगों के नजरिए से प्रॉब्लम को सोचेगा। मैं अगर एक प्रॉब्लम सोच रहा हूँ तो मेरे साथ जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, अगर दूसरे पहलू पर जाके बात करना, जैसे मान लो आप ए पॉइंट पे हो और वो लोग बी पॉइंट पे हैं,
तो आप अगर लीडर होते हो, मतलब ये होता है कि आप बी पॉइंट तक जाओगे और बी पॉइंट सब सोचना शुरू करोगे कि बी के जगह अगर बी के जगह होता तो क्या हो, मैंने क्या सोचता, मैं कैसे रहता, मेरा रिएक्शन टुवर्ड्स सर्टेन प्रॉब्लम, तब जाके आप सोशली एक्सेप्टेबल हो जाओगे। अप्रोचेबल रहना, ओपन माइंडेड रहना। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि आप हर बार ऐसा नहीं कि आप अगर हेड कर रहे हो एक टीम, तो आप एज ए लीडर या एज ए हेड ऑफ द टीम आपका सारे बात सही रहेगा हर बार। You should not always hold this principle right. The thing is, when you feel, when it is told that you should be open-minded, that means you should receive others' ideas, and you should judge before taking a decision. And at this point, I can tell you about Gandhiji's talisman. The thing that that made Gandhiji the Mahatma. Gandhiji said that whenever you want to do some work, so do it in a way that think of the weakest, the poorest and the weakest man you have ever seen. And if you think that the work that you are going to undertake is of some help to that particular person, then it is good and you should do that. And if you think that it will be of no use to the weakest person you have seen, then it is wrong and you should not do it. That makes Gandhi the Mahatma. The point is, my point, what I want to tell you is that, so point is, गांधी जी उनके नजरिए से सोच रहे थे जैसे ज्यादातर लोग, तो लीडर बनने के लिए दूसरों के माइंड से, दूसरों के सेटअप से, दूसरों के नजरिए से कुछ पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट सोशिएबल क्वालिटीज आर, एबिलिटी टू एम्पथाइज मींस सिंपैथाइज। तो सिंपैथी के साथ कोई अगर बोल रहा है, हर बार ये नहीं सोचो कि सबऑर्डिनेटर्स जो हैं, जूनियर्स जो हैं तुम्हारे पास अगर आते हैं कुछ फेवर के लिए, तो ऐसा नहीं कि कुछ आपको झूठ बोल के फेवर ले रहे हैं। हर बार ऐसे अगर सोचेंगे कि हम वो झूठ बोल रहे हैं, तो वी कैन बी, आवर आइडिया विल बी समवॉट ऑलवेज रॉन्ग। मोस्ट cases it will be wrong. Have a positive idea that they may have some problem. Try to find out whether he is telling the truth, he is telling the untruth or lie. But don't say. You see, dedication is a personal quality also, is a social quality also. Dedicated. You must be dedicated towards your work. आप अगर पढ़ रहे हो, अभी स्टूडेंट हो, तो you must have the dedication as a student should have. तो स्टूडेंट लोगों का डेडिकेशन ये है कि जितना इंफॉर्मेशन वो लोग लेना चाहते हैं, जितना नॉलेज वो लोग गैदर कर पाएंगे, पाना है जरूरी, मतलब तो उतना नॉलेज वो लोग कलेक्ट करें। कैसे मिलेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब दैट इज द थिंग। तो यू मस्ट फर्स्ट थिंक दैट वी आर हियर एंड वी हैव टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू एक्सेल इन एग्जाम एंड इन लेटर लाइफ ऑल्सो। हमारा बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हो गया, बस हो गया। लेकिन ये जो बुक है आप लोगों के लिए, ये है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। इट इज नॉट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, इट इज द लाइफ स्किल रादर। आई कैन टेल यू दैट आप यहाँ पढ़ाई खत्म करने के बाद जो करना पड़ेगा, वो आपको जो डायरेक्ट आपका जो डीलिंग रहेगा कि कैसे न्यूज़पेपर ढूंढे, कि जब का एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है तो एडवर्टाइजमेंट कैसे पढ़ें, एडवर्टाइजमेंट को कैसे आंसर करें, तो हाउ टू राइट योर ओन प्रोफाइल। एक चैप्टर आएगा आपका प्रोफाइल, आपका जो सीवी, करिकुलम विटे या रेज्यूम या बायोडाटा, इफ आई कैन से वेरी कॉमन टर्म में, तो आपको कैसे बनाना है कि इम्प्रेसिव हो जाए कोई आदमी आपको हायर करने के लिए, या कोई जॉब के लिए आप जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कैसे बोलोगे, कैसे खड़ा रहोगे, कैसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन अगर छोड़ना भी है तो आप कैसे छोड़ोगे, ये सारे डिटेल्स में आपको अगले जो 5 क्लास रहेगा, आज का 1 क्लास है, आगे जो 5 क्लास रहेगा उसी क्लास में डिटेल्स में हम जितना संभव होगा हम आपको बात कर लेंगे। लेकिन माय पॉइंट इज टू अगेन टेल यू दैट you should be careful about, to not take it for granted that to get good marks in the exams you are listening for exam purpose only. You are listening for life purpose. It is a life skill, and the things that you are going on to, have a notebook, have a pen with your at your disposal when you are listening to this particular block, and take maximum important notes. And if you have the books, it's okay. If you do not have the books, then eCampus is there with you. So download the book and read it page wise. You can get some concrete examples how to go for that.
because the thing is again, let me start with the things that is professional qualities. The what professional qualities is, you can ask me the question that हम तो पहली बार ट्राई करेंगे सर, ये खत्म होने के बाद हम हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज कैसे आएगा? जैसे मैं मेरा दोस्त के बारे में बताया था आपको अभी कि when he was appearing for the interview to be an SP, so he never have the idea that SPs को ऐसे करना पड़ता है. अनदर है, मुझे पता है, मैं सुना हूँ किसी से कि एक आईएएस के लिए वाइवा में एक क्वेश्चन था कि बिहेव लाइक ए कलेक्टर. वो जो बंदा था वो छोड़ दिया है क्वेश्चन को, पास. बिहेव लाइक ए कलेक्टर, वो समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है उसको. तो वो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऐसा था, बिहेव लाइक ए कलेक्टर. उसको पता नहीं था कि क्या करना पड़ेगा. वो थोड़ी देर तक मैंने सुना वो क्वेश्चन, सोचा, thought for some time and then left the question, sir pass, I'm sorry, you can, वहाँ होता है तो you can change your options. तो ऑप्शन चेंज कर दिए, लेकिन बाद में आकर के वो एक चयन किया एक इंस्टीट्यूट जहाँ बिहेव लाइक ए कलेक्टर ऐसे बोले कि एक क्वेश्चन ऐसा है, तो आप अगर कलेक्टर होते तो कैसे बिहेव करते. मतलब क्या है, वो पूछा सर मुझे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तो क्या करना पड़ेगा, मतलब अभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा. मतलब टेबल में कल बेल रहेगा तो कल बेल मारोगे, कोई आएगा उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे दे रहे हैं कोई पोस्ट में बैठने वाला जैसे इंस्ट्रक्शन देता है, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे दोगे तब तो जाके क्लिक कर लो. वो उसके साथ वो कोइंसिडेंट है, लेकिन दूसरी बार 1 साल या 2 साल के बाद जब वो दोबारा इंटरव्यू के लिए बैठा, सो he was again asked with the same question, behave like a collector. Suppose you are appointed as the collector and show us that you are capable of doing rather handling your office. That was the question for him. So as he has taken you can say the training, so he asked, may I use the call bell? Yes. So he put the call bell on and a man came and he said, call Mr. Chaturvedi with all the files to my chamber. So the point is, the man at the counter was there who was taking the names of these interviewees, people, was Mr. Chaturvedi. So he got the job. The point is, कभी कभी लॉक क्लिक करता है, हर बार आपके लिए ये लॉक माने लॉक ऐसे क्लिक करेगा, it doesn't mean. So that is why you have to be ready for that matter. that आपको रेडी होकर रहना पड़ेगा कि कैसे करके आप you should quite easily click the point, because if you are not going to prove your creativity, your speciality against others, you will be running in the red race. You will not click, will not succeed, will not get what you want to get. So the thing is, we are actually discussing about the point that कैसे करना है, मतलब हाउ टू फेस द ग्रेट वर्ल्ड आउटसाइड. आपको 1-2 प्रोफाइल आप बड़े आदमी के बारे में जैसे जब सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो यू गेट एन आइडिया दैट वो लोग अगर कर पाए हैं तो वी कैन ऑल्सो डू. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट टू बी बिग और टू बिकम समथिंग ग्रेट इन लाइफ यू मस्ट हैव अ ग्रेट हेरिटेज बिहाइंड यू. आप कोई बड़े आदमी का लड़का या लड़की या कोई बड़े माहौल से आना चाहिए, आपको कोई बड़ा सा परिवेश, ये सब नहीं होता है. योर डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड मस्ट विजुअलाइज योर एम बिफोर यू. आपको बनना क्या है, मतलब हर बार आंखों के सामने आप वो रखो और वर्क हार्ड. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. यू कंटिन्यू हार्ड वर्किंग एंड so far information or knowledge is there. Get as much as knowledge, as much as information, as much as experience you can get. So coming on to the second unit, searching for a job. As I told you, advertisement जब निकलता है पेपर में, आपको कैसे करके क्या करके करना पड़ेगा. So जॉब हंटिंग मतलब पेपर ढूंढेंगे सर, तो आपको पहले पता करना होता क्या है. What is meant by word career is or a workplace, is series of jobs process by which one earns career मतलब जिससे आप रोटी कमा लेते हैं. How you
the concept of an unfolding career had little or no meaning nowadays. New ideas, progress, and the habit of individualist self-development, career possible if not expected. So career काउंसलिंग बहुत सारे forms होता है career काउंसलिंग का, वो career काउंसलर क्या करता है, तुमको कैसे career so it is a one-on-one or group or professional assistance to exploration and decision making tasks related to choosing a major occupation. The field is vast and includes career placement, career planning, learning strategies, and student development. The point is, once you have decided on your career, कि ये करना है मुझे, and then completed the course of study, you will need to look for a job. In order to decide the sort of job you would like to undertake, it is sometimes advisable to contact consultants who could help you to understand the challenges involved in starting a new job. Consultants thus take up too many diverse areas, may lose focus, and so up single-mindedly. जैसे मैं पहले बोला कि आप however, many consultancies have had real success stories, and going to them, one can help you plan your ventures, your dreams. That is to say, you can visualize. It has been estimated that most jobs are not advertised in a competitive job market. Most employees actually expect applicants to take the initiative. It has been estimated that 1/3 of the vacancies for graduates are not advertised publicly. Particularly in a competitive job market, it can also be cost effective for the employer to draw a limited but well qualified and motivated self-referred pool of candidates. इसका मतलब ये होता है कि आजकल ये जॉब का जो ढूंढने का तरीका होता है, ये तरीका भी बदल गया है. तो आपको एक अपना प्रोफाइल बना के आपको शॉर्टलिस्ट करके आप कैसे कर पाओगे वो? रिमेंबर टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ योर नेटवर्क एंड कॉन्टैक्ट्स. आपका नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स जितने ज्यादा लोगों के साथ या संस्पर्श में आप आओगे, मतलब, एंड फॉलो देम अप फ्रॉम टाइम टू टाइम टू लेट देम नो you are actively seeking work, to update them on your progress, or to simply say thank you. Even never underestimate the effectiveness of personal contacts. आप जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों के साथ अपना तालमेल बैठाएं, फ्रेंडशिप बढ़ाएं, मतलब, that is to say have a wide area of personal contacts, so that जब उन लोगों को पता चलेगा कि you are seriously searching a job for your own, they may help you in some way or other. They may don't take on the mind that उसको बोलने से क्या होगा, वो क्या कर पाएगा. Don't think like that, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी ने काम में आ सकता है. ऐसा नहीं कि कोई किसी का काम में नहीं आएगा. जितना ज्यादा हो सके कांटेक्ट एरिया जो है, पर्सनल रिलेशन जो है, वो आप उसको बढ़ाओ और बीच बीच में उनके साथ कांटेक्ट में रहो. सिंपली अगर कुछ नहीं होता है तो थैंक यू करने के लिए से सिंपली ओवर फोन, अगर आप कैसे हो, ठीक ठाक हो कि नहीं, और वो तो ऑब्वियसली पूछेगा ना आप क्या कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, नहीं पढ़ाई अभी चल रहा है, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है जॉब. So he can of some help, he can inject you some idea. Aim to track down the most relevant person and their job title. कभी किसी ऑफिस में अगर मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ मतलब कोई रेफर कर देगा आप जाओगे. यू मस्ट बी सेल्फ रेफर्ड. मतलब कभी कोई जब बुलाने से पहले यू मस्ट सर्च द जॉब. जैसे सर्चिंग मतलब कि सर्च करने के लोग क्या कुछ नहीं पा जाते हैं और आप जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो तरीका होता है, हम अच्छे से सोच माने सर्चिंग जो होता है वो सही तरीके से नहीं होता है. तो कुछ जॉब के साथ हमारा रिटन इंटरव्यूज होता है, हम रिटन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. जहां रिटन क्वालिफाई करते हैं वहां वाइवा में कट जाते हैं, तो प्रिपरेशन ठीक से नहीं होता है. तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ डेफिनेशन आएगा तो वोकैबुलरी में. आई हैव बीन इन दिस जॉब so long that I feel my career less static हो जाएगा. आप अगर रेडी नहीं रहोगे, मतलब कि ज्यादा बार आप अगर सोचेंगे नहीं नया चीज के बारे में, कैसे एक जॉब मिल गया तो यू विल बी गेट सेटिस्फाइड विद, इसमें प्रमोशन भी रहा होगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि
डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, यू कैन गो फॉर सो दैट इंटरव्यूज, बाय दैट वे प्रमोशन लेकर के आप आगे भी बढ़ सकते हो। जब में आपको मिल सकता है, क्या प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकता है, नहीं होता है। वी आर सेटिस्फाइड विद जो जितना मिलता है उसी में हम सेटिस्फाइड होके रह जाते हैं। So the point is, you must not do that thing. You must be seriously searching about that particular concept, and कुछ definitions आप लोगों को मैं बता देता हूं अभी। A person who wants to get to the top, आप में से कोई अगर कुछ टॉप करना चाहते हैं तो टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। ए पर्सन हु वांट्स टू गेट टू द टॉप इज एम्बिशियस। ए सिंगल वर्ड आई एम टेलिंग यू some of the single words that you may use, you may get to use as you are in the job scenario. So a person who wants to get to the top is ambitious. A person who can relate to other people's feelings, we can say he is empathetic. Empathetic जैसे मैं बोला कि एक सोशल क्वालिटी है, एक पर्सनल क्वालिटी में empathetic मतलब sympathetic feeling about others. Then a person who enjoys meeting people and new situations, you can say extrovert. वो कुछ मिला जुला किस्म का आदमी है जो दूसरों के साथ मिलना जुलना, बैठना उठना, बात करना ज्यादा पसंद करता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट। दो तरह का ये रहते हैं। एक वो रहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क्या, कुछ इंट्रोवर्ट रहते हैं अपने आप में खोए जाने वाले, और कुछ रहते हैं कि उनका सोशल कंटैक्ट होता है, बहुत सोशल कांटेक्ट में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो। ए पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम, जो पर्सन ऑलवेज ऑन टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुअल होता है, जो ऑन टाइम हर बार सही समय पे सही काम करने वाला है। पर्सन हु कैन बी काउंटेड अपन, डिपेंडेबल, रिलायबल हम इसको बोल सकते हैं, रिलायबल, डिपेंडेबल। सो देन ए पर्सन हु कैन चेंज पीपल्स ओपिनियंस, person who can change so new situation, some the person can change people's opinion, आपको परsuade करके आपको ये ऐसा होगा वो होगा, हाँ, तो ऐसे करके भी कोई आपको परsuade कर सकता है, वो परsuade टाइप का पर्सनालिटी होता है। तो ए पर्सन हु डज नॉट इजीली गेट रफल्ड, जो रफल्ड नहीं होता है, मतलब डायनामिक, आपको डायनामिक मतलब कार्यदक्ष थोड़ा हम यदि कहबा, यू मस्ट बी माने जितना चाहिए, मतलब जितना इफोर्ट आपको देना चाहिए किसी काम में तो आपको देना पड़ेगा, वो अगर आप होते हैं तो यू बिकम परसुएसिव, यू बिकम डायनामिक। नाउ इनोवेशन एंड डायनामिज्म, दो थिंग्स, कुछ नए तरीके से सोचना, और हर बार जो कोई बोलने से पहले भी जो काम आप लोगे मतलब साथ में, तो इसको नई तरीके से करने के लिए सोचोगे, मतलब तब जाके काम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। सो द पॉइंट इज बट व्हेन यू आर इन सर्च फॉर ए जॉब, आप तो जॉब ढूंढ रहे हो, तो जॉब ढूंढ रहे हो तो इस पे क्या होगा, तो सोशल कांटेक्ट को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जिस चीज के साथ जितने ज्यादा लोगों के साथ आप मिल सकते हो मिलो, और हैव ए रिकॉर्ड, आपको बीच बीच में उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, एंड अपने आप को उसी हिसाब से आप तब तक तैयार करोगे। जितने ज्यादा लोगों के साथ हम मिलेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, वो लोग तो बात करेंगे हमारे, जब बात करेंगे वो लोग, दे विल बी टेलिंग यू अबाउट लाइफ स्टोरीज। उनके टाइम में तो ये था से कि टाइम में शायद इजी था, अभी नहीं, इट इज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव। तो करना क्या पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसी, कुछ सोशल क्वालिटीज, कुछ सोशल क्वालिटीज, कुछ पर्सनल क्वालिटीज, कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे लोग आपको ढूंढेंगे। So you see, I'm reading you out about one profile. My name is Salman Anwar. I'm in my final year of economics major.
I have many dreams which I am determined to fulfill. I wish to join UNESCO. Here I would like to work on projects involving underprivileged children. My dream is to create a world where no child goes hungry. My greatest joy is to see a smile on a child's face. In order to fulfill my ambition, I am also a member of the college social welfare club. So we have taken under our care a nearby slum cluster. I do voluntary teaching there. I teach both adults and children. I go there twice a week in the evenings. You see, this is a profile for you people. And so he is getting वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्लम, पास में एक स्लम है, वो स्लम में जाता है, बच्चों को बूढ़ों को भी पढ़ाता है, क्योंकि वो आगे चल के यूनेस्को में जाने के लिए कोशिश कर रहा है. तो पॉइंट इज, तो इन दिस यूनिट क्रिएटिव जॉब हंटिंग. क्रिएटिव जॉब हंटिंग क्या होता है, मतलब कि आप कुछ नए तरीके से आप जॉब को ढूंढोगे. खाली पेपर एडवर्टाइजमेंट पढ़िबा तापर गोटे अप्लाई करदबा एवं किछि करबानी ता परवर्ती कन्सिक्वेंट वर्क्स किछि करबानी सेमती हबो नै. तो आपण मन को कोन करे पड़िबो, गोटे जेतले जॉब आपण देखुचंती बा जोटे गोटे एडवर्टाइजमेंट रे ब्लैंक बा वैकेंसी बाहरुची ता अपन जेतले अप्लाई करबा से जॉब टी कोन, से जॉब रे कोन कोन करा जाय पारिबो, कोन से जॉब रे डिमांड कोन, सेठी को प्रकार रो काम करे को पड़े, ऑफिस आवर केते समय केते टंका से माने सैलरी दोउचुती, को टाइप रो काम अछि, सेठी दिन को केते घंटा परिश्रम करे को पड़िबो, केते लोकन संगे मिसो पड़िबो, को टाइप रो लोक माने प्राइस से ऑफिस को आसुतबे. एंती यू गो ऑन exploring as much as information possible on the thing. That is what we call professional awareness. Then वो professional awareness के बाद क्या होगा ना, आपको अपना क्वालिटी माने आपण माने निजे निजर क्वालिटी माने भी बढ़ाइबे. मु जदी बहुत शीघ्र रागी जाउची, गोटे कथा रे रागी जाउची बा विरक्त हे जाउची, ताले मो पब्लिक सेक्टर रे काम करबा कथा नुह. पब्लिक लाइफ जोटी बेसी पब्लिक आस्तुबे जाउथिबे से लेवल को मु जिबा कथा नुह. तार अर्थ हैला जिबा कथा अर्थ हैला लोक तो आसीबे, जोटी आसीबे बहुत बहुत प्रकार रो लोक आसीबे. किए गोटे भल लोक थी, किए गोटे रागी लोक भी थी, सी रागी गला और आपण मैंने रागी गले कहले आपन जो रागिले से कौन हम ना, से जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर से ऑर्गेनाइजेशन छवि जोटा अच्छी से छविटा खराब है. दैट इज द थिंग. सो आपको क्या करना पड़ेगा, खाली एक प्रोफेशनल नॉलेज रखना पड़ेगा ये जरूरी नहीं. जरूरी होता है कि यू शुड बी पर्सनली ग्रूमिंग योरसेल्फ. आपका जो अपना क्वालिटी होता है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा. बहुत बार ऐसा होना पड़ेगा कि आपको पेशेंट लिसनर, आपको बहुत लिसनर होना पड़ेगा. आपको पैसिवली बहुत समय तक आप सुनोगे, तब जाके आप एक या दो बात बोलोगे, तब जाके काम बनेगा. तो सुनना भी जरूरी होता है कभी कभी. तो दैट इज द थिंग. खाली गेटिंग ए जॉब, क्रिएटिव जो जॉब हंटिंग आजकल के हिसाब से कोई जॉब के लिए आप अपने आप को काबिल समझते हो. दैट मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, थिंक दैट व्हाट दैट जॉब डिमांड्स फ्रॉम यू. वो जॉब का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. जब भी करो, कोई छोटा सा भी जॉब हो, जॉब इतना बड़ा होगा या उस हिसाब से होगा ऐसा नहीं. तो मतलब कि जैसे आई कैन टेल यू कि कोई बड़े आदमी जैसे बोले, आप अगर कभी आपको माविंग द लॉन, घास भी अगर काटना पड़ता है ना, तो आप नंबर 1 बनो, अव्वल नंबर का घास काटने वाला, तब भी आप डिमांड में रहोगे. कभी अगर आपको यू कैन बी द सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में भी एक चैप्टर आएगा. तो आप एक कार डेकोरेटर का काम कर रहे हो, तो कार को सीजन में जब कार मैरिज आएगा, ये आएगा, कार डेकोरेशन कर रहे हो, तो आप जब कार डेकोरेशन कर लोगे तो ऐसा करना कि जो भी देखेगा पूछेगा कि कहाँ से किए हो, तब आप क्लिक करोगे. तो ये एक दिन में एक्सपर्टाइज नहीं आता है. One can never be an expert overnight. You have to go for it. Consequently आपको धीरे धीरे चल के जाना है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज आप सोच लो कि आई एम गोइंग टू बी डेडिकेटेड और कल सुबह आप डेडिकेटेड हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है. तो आपको डेडिकेशन जो है वो हैबिट के हिसाब से आपको अपने आप को ढलना पड़ेगा. वो समझे कि डेडिकेशन क्या होता है. डेडिकेशन ये होता है कि होल हार्टेड या सिंगल पॉइंटेड कमिटमेंट टुवर्ड्स ए जॉब. आपको अगर 2 घंटा पढ़ना है, मतलब इस काम के लिए, या ये पढ़ रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो 2 घंटे के लिए सुन रहे हैं, तो 2 घंटे मतलब 2 घंटे सुनना है. तो 2 घंटे में आप किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कुछ खाना वाना खा रहे हो, साथ में सुन रहे हो, बीच में कुछ हाँ सर वो तो बोले थे लेकिन हमारे पास तो बुक नहीं है. तो मैं तो यहाँ तक जब भी बोल रहा हूँ तो साथ में बोल के जा रहा हूँ. बुक्स जरूरी होता है, लेकिन बुक्स के साथ भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस का भी कुछ होता है, कुछ
अनुभूति से आप लोग सीख पाओगे। तो सारे खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन जब आएगा इसके बाद हम पूछेंगे तो ठीक है, तो आपको कोई कोई डाउट वाउट क्या पूछेगा कोई, सर आप सब बोले जो लेकिन बुक्स कब मिलेगा, तो गया मेरा तो जो बोल रहा हूँ तो ये बेकार गया मतलब। सो डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब होता है, आपको धीरे धीरे करके ये मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को डेडिकेटेड या कमिटेड नहीं साबित कर पाओगे तो अच्छे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। एंड जो यूनिट अभी हम डील कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, तो एडवर्टाइजमेंट एक जॉब एडवर्टाइजमेट को मैं रीड आउट कर लूंगा, उसके बाद उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो जैसे कि एक इस यूनिट में पहुंच के रेस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, जॉब का तो एडवर्टाइजमेंट कभी कभी निकलता है, लेकिन कैसे माने कैसे हम अप्लाई करें, मतलब हाउ टू अप्लाई प्रॉफिटेबली, ऐसे एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मींस हाउ टू राइट सच ए ब्यूटीफुल एप्लीकेशन दैट the man who sees your application becomes or is compelled to call you for an interview. That is the thing. So आपको देखना पड़ेगा कि the School of Sciences invites, ये लोकेशन है इग्नू का मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, डेट listed 1st August. So the thing is that you see the School of Sciences invites application from candidates for the position of 2 full-time senior consultants in physics. They will be involved in helping the faculty in developing theory and practical components of physics electives of BSc CBCS program. IGNOU vacancy details, number of posts, 2, number of the post, senior consultant, age limit, the maximum age limit for these posts is 68 years on the date of advertisement. Essential qualification, PhD in physics with minimum 10 years teaching experience at undergraduate or PG level. Desirable, teaching of electronics, optics, electromagnetic theory, nuclear physics, quantum mechanics, thermodynamics, and statistical mechanics at undergraduate or postgraduate level, along with other physics courses. Second, experience of writing textbooks and SLMs at undergraduate or पीजी लेवल, ये क्राइटेरिया है जॉब का। तो रेस्पॉन्ड कौन करेगा, हाउ टू अप्लाई, इसमें लिखा हुआ होता है सिलेक्शन प्रोसीजर, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अटेंड द इंटरव्यू along with the application in the prescribed format with original documents and xerox copies of the same on 31st August 2018, last date of receipt of application 31st August. एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट का ये नंबर होता है, डेट होता है। तो बेसिकली व्हाट यू विल हैव टू गो फॉर, कि कौन दिया है ये एडवर्टाइजमेंट, इग्नू, किसके लिए दिया है, पोस्ट क्या है, सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स, व्हाट डज द जॉब डिमांड्स, जॉब का डिमांड क्या है, करना क्या पड़ेगा, बुक्स भी लिखना पड़ेगा, और बच्चों लोगों को जैसे काउंसलिंग में हेल्प करना पड़ेगा, टीचर लोगों को मटेरियल प्रोड्यूस करने में, जो मटेरियल जैसे बुक्स, ई ज्ञान कोश में जो सब बुक्स सब डाला गया है उसको बनाने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करना, कभी काउंसलिंग का क्लास लेना, ये सब काम करना पड़ेगा। एंड एज लिमिट क्या दिया है, 68, रिटायर्ड के बाद, मतलब फुल टाइम दे के वहाँ आप काम करोगे। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बुक्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते हैं, कि सबको पता होता है कि आप यू आर नॉट रेगुलर स्टूडेंट, सो ऐसे होता है, इट्स ब्यूटीफुली बुक्स आर रिटन, दिस बुक्स आर वेरी ब्यूटीफुली रिटन, कि घर बैठे भी आप ये कर सकते हो। और हमारा काम होता है, जैसे आज मैं आपके लिए काउंसलिंग के लिए बैठा हूं, तो मेरा काम होता है कि थोड़ा बहुत आपको आइडियाज दे के हम कोर्स के लिए प्रेरित कर लें। वी आर हियर टू एनकरेज यू टुवर्ड्स द कोर्स, कि कोर्स का डिमांड ये है, आप उसी हिसाब से कैसे कर पाओगे, और थोड़ा बहुत आइडियाज ये लेके आप असाइनमेंट लिखोगे। आप ऐसे कंसर्न में मत रहो कि खाली असाइनमेंट कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम में कैसे अच्छा मार्क्स लाएगा, तो ये बात नहीं होता है। तो थिंग इज यू लर्न इट फॉर योर लाइफ, कि ये आपको जरूरत में आएगा। जैसे यहाँ कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, कहीं जाके काम करोगे, तो काम जब करोगे तो इसमें बात ये है कि इंग्लिश हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा। हम कभी तुम नहीं कर पाओगे तब बोल के थोड़ा बहुत हिंदी आपको बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार यू हैव टू ट्राई टू डेवलप योर इंग्लिश स्पीकिंग, आपको इंग्लिश बोलना जरूरी है। छोटा छोटा सेंटेंस हो, सर आई गो, आई कम, आई मीटिंग, ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने कोई भी कलीग, कोई भी फ्रेंड,
इसके साथ आप धीरे धीरे बोलो। क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जानते हैं इंग्लिश बोलना, लेकिन जो कभी बोलते नहीं किसी के साथ, इसलिए क्या होता है, हैबिट नहीं होता है। तो हैबिट नहीं होता है, जब जरूरत होता है बोलने के लिए तब बोल नहीं पाते हैं। तो इंटरव्यू तो हिंदी या उड़िया में नहीं होगा ना। सारे इंटरव्यूज और सारे जो बुक्स है आप प्रिपेयर करोगे, जैसे जीके का हुआ, जनरल स्टडीज का हुआ, या मेन कोर्स बुक का हुआ, सारे बुक तो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो पॉइंट इज टू एक्सेल इन द आर्ट। तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज में, ज्यादातर इंग्लिश, जेहेतु स्कूल में आप पढ़े हो, सब इंग्लिश आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सेंटेंस करके आप बात करना सीखो धीरे धीरे। तो तरीका होता है कि कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है, हैबिट नहीं होता है, हम वेयर बोलते हैं, कोई लोग आर नहीं बोलते, वेयर। सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। हम कैसे एडजस्टेड हैं, हम ऐसे वेयर डू यू कम फ्रॉम, ऐसे कोई तो इतना चिल्ला के तो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो ये तो हम अब तक बोले कि सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा आप लोगों को। वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू शुड डू, दे मस्ट बी प्लीजेंट। लैंग्वेज किसी को गाली देने के लिए थोड़ी ना यूज होता है। द पॉइंट इज, so you should be soft spoken। एंड ये जो चीज है आपको रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैं बोल देता हूँ आप लोगों को थोड़े बहुत लाइन, कुछ कुछ मुझे थ्योरी भी आपको बताना पड़ेगा, तो पढ़ रहा है इसलिए। यू सी, thousands of employers are classified, use classified ad columns as a means to advertise vacancies, and even more people respond to these ads, but only a few applicants ever get a positive response. You may think so, why bother with these ads? If you consider the competition for one job, it may seem a futile operation, but there are a few secrets for responding a job ads. If you make use of these tips, your chances of landing the job increase tremendously. This is benefits of responding to a job ads and how to use the classified ads. Step 1, कैसे करना है, select the advertising vehicle, subscribe or purchase the newspapers। then आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग प्रोसेस। इफ यू आर ए बिगिनर, जैसे आप लोगों में से कोई कोशिश कर रहा होगा, तो मार्क द एंट्री लेवल जॉब्स, पहले जो जॉब है, जो एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, उसी टाइप का जॉब आप चूज करो, उसको अप्लाई करो। दे मे नॉट बी डिलीवरी डायरेक्टली अप्लाई टू यू। सो आपको क्या करना, मेक ए लिस्ट। आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो अपने हिसाब से 1 2 3 करके आप बनाओ, अपना प्रोफाइल रेडी करना। अगले चैप्टर ये आएगा कि अपना प्रोफाइल कैसे रेडी करें, तो अपना प्रोफाइल रेडी करके रखना। और साथ में स्पीकिंग इन इंग्लिश, कोई भी चीज के बारे में, कोई पर्सन आपको, जैसे मैं पहले बोला था कि आपके गली में या आपको पढ़ाया हुआ कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई आपका रिलेटिव जो बड़े पोस्ट पे हैं, तो आपको उनका कुछ चीज तो अच्छा लग रहा होगा ना, तो उसी के बारे में आप किसी दूसरे के साथ बात करना और इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश करना कि उसका ड्रेस सेंस अच्छा है। तो आउटर इम्प्रेशन जो होता है, इनर क्वालिटीज, कोई अच्छा बात करता है, कोई कहानी सुना के बोलता है, कोई तुम्हारे हिसाब से बोलता है, तो दैट मीन्स द सोशल क्वालिटीज इज वेरी फ्रेंडली, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। आपका पॉइंट या आपका प्रॉब्लम को आपके हिसाब से सोचने के लिए कोशिश करता है। तो ये एक बड़ापन होता है आप लोगों को, उन्हीं में से ये सब बात सीखना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता है कि 2 4 या 10 क्वेश्चन पूछ लिए और 10 क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो जब मिल जाएगा। आगे चल के हाउ टू फेस एन इंटरव्यू आएगा दूसरे ब्लॉक में, कल या परसों ये क्लास हम डील करेंगे, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू प्रिपेयरिंग। कोई भी 10 में से कोई एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं रहेगा, फिर भी जब आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी ज्यादा होता है। आप कैसे बैठते हो, क्रॉस लेग्ड बैठते हो या नहीं, आप जब आंसर देते हो तो टेबल पे हाथ रख के बोलते हो या हाथ थाम के, जैसे मतलब अपने लेग पे या जंघे पे, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि पुटिंग योर हैंड्स ऑन योर थाइज इफ यू कुड आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग। और जैसे ही क्वेश्चन सुन जाते हो तो डू यू गल्प, जैसे बहुत बार ऐसा होता है हम गल्पिंग डाउन करते हैं तो साफ करके इसके बाद बोलते हो, या स्क्रैचिंग ऑफ द हेड्स, वो नर्वसनेस के साइन होता है। ये सब बहुत डिटेल्स में है। तो बट द पॉइंट इज, दिस इज फर्स्ट यू हैव टू थिंक ऑफ वन एडवर्टाइजमेंट एंड देन आपके हिसाब से आप जो जब सर्च कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट उसी हिसाब से फाइंड करना। जैसे
अभी another example I can give you. Here is a fast growing fashion jewelry manufacturing company based on Singapore is looking for the expansion of its marketing division. You see, be clear from the very beginning. A fast growing fashion jewelry manufacturing company, मतलब ज्वेलरी बनाने वाला ये कंपनी है, तो बेस्ड इन सिंगापुर, इसका हेडक्वार्टर अभी सिंगापुर में है. इट इज लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर एक्सपांशन ऑफ इट्स मार्केटिंग डिवीजन. तो मार्केटिंग डिवीजन में आप लोगों को काम करना पड़ेगा. मतलब तो नीचे लिखा है, देखो कैपिटल लेटर में बस में रहेगा. आपके पास अगर बुक रहेगा तो बुक 32 पेज में ये है. तो required are sales officers, area sales managers, accountant, office assistant, कम कंप्यूटर ऑपरेटर्स. इतने सारे जो जहां मार्केटिंग डिवीजन उसका खोलेगा, मतलब वहां सेल्स ऑफिसर्स रहेंगे, एरिया सेल्स मैनेजर रहेंगे, अकाउंटेंट रहेंगे, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहेंगे. इतने सारे पोस्ट के लिए आप अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से आप इसको अंडरलाइन करो कि आप किस कैटेगरी में जा सकते हो. तो इसके लिए फिर क्या, कैंडिडेट्स मस्ट बी graduates with 3 to 5 years of experience in selling और marketing product. जो selling माने जो मार्केट जाके बेचना जो सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कोई पूछ रहा है तो जैसे सैलरी नो बार, नीचे एक कैपिटल लेटर में लिखा होता है सैलरी नो बार, मतलब कॉम्पिटेंट इफ यू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स. आप अगर अच्छे काम करते हो तो सैलरी आपको अच्छा मिल सकता है. जैसे फॉर प्रायर अपॉइंटमेंट कंडक्ट, किसी प्रायर अपॉइंटमेंट अप्लाई करने से पहले यू शुड गो फॉर अपॉइंटमेंट्स. तो ये नंबर को कॉल करके आप अपना समरी बेस्ट बायोडाटा दे सकते हो, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो. तो थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ माने यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस योरसेल्फ कि ये कंपनी कैसा है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो इसमें जॉब का जो आप सोच रहे हो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेगा तो इसमें क्या हो सकता है. तो इसलिए एक नंबर जो दिया गया है, इसी नंबर से किसी एक नंबर को आप पूछो और बात करो, जैसे कि कैसे किया जा सकता है. मतलब तो एक सेल्स ऑफिसर होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए. एक पेज 34 में यू सी सम क्वालिटीज आर देयर गिवन ओवर देयर. आप अगर बुक है, नहीं तो आप डाउनलोड करके अगर बुक्स जाकर के बाद में अगर पढ़ोगे तो भी आप पढ़ सकते हो आज रात को, और कल भी जब क्लास होगा तब यू कैन आस्क आल्सो द क्वेश्चंस इफ यू हैव सम डाउट्स ओवर हियर. द पॉइंट इज तो कहाँ से मिल सकता है. जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि जो क्रिएटिव जॉब सर्चिंग होगा तो कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है. जैसे न्यूज़पेपर से हुआ, इंटरनेट से हुआ, देन पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड हैंडबिल्स कभी कभी आ जाता है. तो ये एक क्लूज होता है, एक बड़े सा व्यूज ये होता है. तो थोड़ा बहुत जो सोर्सेस होते हैं उस सोर्सेस का डेफिनेशन भी हम आपको बता रहे हैं अभी. तो एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड ऑन सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद द न्यूज़पेपर और स्टॉक ऑन वॉल्स और की प्लेसेस फॉर पीपल टू सी. ये सब आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर में एक छोटा सा लिफलेट जैसे आ रहा है, तो नहीं तो कभी इलेक्ट्रिक पोल पे या कोई वॉल पे, बाउंड्री वॉल पे लगा हुआ होता है. इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंडबिल्स. तो हैंडबिल्स से हम जान सकते हैं नोटिस बोर्ड, डिफरेंट जगह का नोटिस बोर्ड जो ऑफिसेस होता है, ऑफिस का खुद का नोटिस बोर्ड होता है, उसमें वैकेंसीज निकल सकता है. इंटरनेट पे निकल सकता है, वेब का एड्रेस होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है बहुत सारे आजकल का डिजिटल वर्ल्ड में, वहां मिल जाता है. न्यूज़पेपर में ऐड निकलता है, कभी पोस्टर, और रेडियो में भी कभी कभी वैकेंसीज का जो नोटिस आता है, मतलब विज्ञापन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है कि पोस्ट निकला है एंड यू शुड अप्लाई फॉर. बट बिफोर अप्लाइंग द कंसेप्ट इज you should be knowing how to go for that particular things. The thing, let us start with some कुछ थोड़ा बहुत कुछ ग्रामर हम कर लेते हैं इसके साथ. योर जॉब विल इंक्लूड राइटिंग, जो बहुत बार होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स हमको यूज करना पड़ता है. एक ग्रामर, ये छोटा सा ग्रामर का कंसेप्ट दिया है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ. तो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स होता है. फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स आपको पता है, वर्ब्स होता है जो एक्शन हमें समझाता है, जिस जो पदरू किसी गोटे कामर सूचना मिलिबो सेटा क्रियापद. तो क्रिया हमें दी प्रकार कथा करि परिबा, जोठी हमें टेंस यूज करि परिबा. आ किछि क्रिया अछंती जो मानकर टेंस संगे किछि लेनदेन नाही, जो टेंस संगे जो मानकर जतबळे जो क्रिया मानकर किछि लेनदेन नाही, से मान को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स कहि परिबा. एवं नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स गुडी को चारि प्रकार रे हिथांती. जेमते हमें कहि परिबा, सपोज आई एम राइटिंग ए लेटर एंड आई वाज राइटिंग ए लेटर. इसमें टेंस हमको एम और वाज से पता चल जाता है.
तो राइटिंग का कुछ लेन देन नहीं होता है। तो राइटिंग क्या होता है, राइटिंग एक टाइप का नॉन फाइनाइट भाव फॉर्म हुआ। तो नॉन फाइनाइट भाव फॉर्म्स बा असमापिका क्रिया ओडिया रे कहले हबो सेटा असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया चारि प्रकार रहि परिबो। V1 फॉर्म भी केबे केबे जो माने नॉन फाइनाइट भाव फॉर्म्स रे आसी परिबो। केम देखो, शी हेल्प मी डू द एक्सरसाइज। इसमें भार पहला भार जो होता है हेल्प होता है, ये V2 फॉर्म में है। और जो डू द एक्सरसाइज वो डू होता है, डू V1 फॉर्म में है। और नॉन फाइनाइट भाव फॉर्म से डू से हमें कोई टेंस के बारे में पता नहीं चलता है, तो हेल्प या हेल्प्स होने से टेंस के बारे में पता चलेगा। और आप माने आई कैन टेल यू दैट द फर्स्ट वर्ब दैट कम्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, इस सेंटेंस का जो पहला वर्ब होता है, जो भी फर्स्ट वर्ब होता है, एम गोइंग में पहला वर्ब कौन होगा, एम होगा। और गोइंग जो है वो सेकंड वर्ब में आएगा, वो वर्ब फ्रेज में जाता है। तो कभी कभी दो वर्ब ऐसे लगा हुआ होता है, जैसे हेल्प मी डू, आई वांट टू एक्सेल। तो टू एक्सेल वो टू प्लस V1 फॉर्म के साथ रहता है, वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होता है। ही वांटेड मी टू डू द जॉब, आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम। इसमें वांट V1 फॉर्म में रहा, प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस में रहा आई वांट टू ईट एन आइसक्रीम, और ही वांटेड मी टू हेल्प हिम। तो ये जो दो सेंटेंस हुआ, वांट के लिए हम ये पहला सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस बोलेंगे, और वांटेड के लिए उसको V2 या पास्ट टेंस वाला सेंटेंस बोलेंगे। तो पॉइंट इज, जो दूसरा वाला रहा, ही वांटेड मी टू हेल्प और आई वांट टू ईट, टू के बाद टू प्लस ईट या टू हेल्प जो होता है, ये दो चीज जो रहा, ये होता है नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, हर बार फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स के साथ हम बात नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी हमको नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स भी यूज करना पड़ेगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स बहुत बार हमको क्या करता है, हम बहुत बार हमको हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपना बात बोलें। कभी कभी ऐसे जरूरत आ जाता है। तो जिनके पास अगर बुक्स नहीं है, आप अगर बहुत सारे लोग ऐसे अगर बोल रहे हैं, तो ये ज्ञान कोश से ये बुक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। जो बुक कल, जैसे हम कल जो है बुक 2 इस चैप्टर का इंग्लिश एट द वर्क प्लेस, बुक 2 का 2 यूनिट हम खाली बात करेंगे। आज तो 4 यूनिट बात हो जाएगा, अभी यूनिट 4 में हम हैं। और कल 5, 6, 5 एंड 6, टुमारो वी विल डिस्कस 5 एंड 6। आप लोग उसी 2 को डाउनलोड करके आज देख लीजिए, और उसी से आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के अगर आएंगे, या नहीं तो कुछ क्वेश्चंस उसी में जा करके देख के अगर पूछेंगे, तो आपको समझने में आसानी रहेगा। सो प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, जैसे मैं पहले बोला कि आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग यूजिंग expanding on the control you have over the interviews, maybe the simple most important factor in your ability to get the job and want to hold for the job you love. So first thing, what does it take? Personal traits such as friendliness, courtesy मतलब सही व्यवहार जो होता है, genuine interest। आप जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कभी ऐसे नहीं बोल देना कि और जॉब ट्राई किया था नहीं मिला तो इसलिए इसी जॉब में आ गया। जैसे ही आप ये बोल देते हो इंटरव्यू में, यू विल बी समरली डिजेक्टेड। तो आप ऐसे कभी नहीं बोलना, कि जेन्युइन इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा इन द अदर पर्सन। गुड लिसनिंग स्किल्स, आपको सुनने का ये रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट। आप कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या करें हमारे टाइम में ये नहीं था, वो नहीं था। सो ये नहीं था, आजकल के हिसाब से मेरे पास ये नहीं था, डोंट टेल लाइक दैट। आजकल के जो टाइम है, हम इसको बोलते हैं कि नॉलेज का एक्सप्लोजन का टाइम, एक्सप्लोजिवली नॉलेज इज अवेलेबल। नॉलेज का मानो जैसे विस्फोरण हो रहा है। आप सब अगर मैं एंड्रॉइड मोबाइल सेट के साथ बोल रहे हैं, तो गूगल के साथ है, नेट है, सब बहुत बहुत किस्म का तरीका हो गया आजकल जानने का। मास मीडिया होता है, टीवी हो गया, टीवी पे न्यूज आता है, पढ़ाई भी होता है। अभी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आजकल वो कोरोना के लिए पढ़ाई होता है ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे पेंडल्स आ गए हैं जहां आप नॉलेज गेन कर सकते हो। आप अगर ये बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो कहाँ से पता नहीं चला, कोई हमें नहीं बताया, क्या करें कहाँ में, तो दिस इज मीन्स यू लेक इन इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट है नहीं। आप अगर इंटरेस्ट देते हो, आप अगर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, आप सीरियस अगर रहो कि नहीं मुझे ये क्लिक करना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है, मुझे इंग्लिश में बात करना है। जैसे मैं अगर इफ आई कैन गिव द ब्राइट एग्जांपल ऑफ, तो इंग्लिश में बात करने का सबसे आसान तरीका होता है। जैसे
जैसे आप तैरना सीखना चाहते हो, कैसे करोगे? आपको तो तैरना पड़ेगा ना, किसी तालाब में जाओगे या किसी किसी भी वाटर ये में जाओगे, वाटर बॉडी में, वहां किसी दूसरे के सहारे आप कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। हाँ, चांसेस है खुद अगर इंस्पेक्टेड होके नहीं करोगे तो चांसेस है कि डूब जाओगे या अपने आप को कुछ हानि पहुंचा लोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो जो जिसको पता है पहले से उसी को साथ में लेकर के जाते हैं और सीखते हैं। लेकिन तैरना जो होता है किसको करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है। हम किनारे पे बैठ जाते हैं स्विमिंग पूल का और बड़ा सा बढ़िया सा बुक ओडियारे लेखा है भल भल बही पहरिबा केमिति शिखिबे ताकू धरिकरी जदि से स्विमिंग पूल माने बंधरे बसिकरी आड़े बसिकरी स्विमिंग पूल ऊपर जो जगह अच्छी बसिया पे रेस्ट करने से बसिकरी आम से बहीटा को बारंबार पढ़िले लिखिले नोट कले अंडरलाइन कले तो पहरा शिखि पहरा शिखिबा आपको पानी भितर बुलवाक पड़ो। You have to jump into the water and to learn swimming. जैसे स्विमिंग गोटे स्किल अच्छी, स्विमिंग को शिखिबा पई हमको पानी भितरे जाइकरी पहुंचबाको पड़िबो एवं पहरिबाको पड़िबो। थरे दिथर हमको पानी किसी पी जीवाको पड़िबो, बुड़ी जीवाको पड़िबो, बेले बेले भारी व्यस्त लागिबो, हमें माने कोन करबा जेतेबेले व्यस्त लागिबो सेतेबेले सक्सेस हे जे जो हाथ गोड़ छाटिबा कथा हो हाथ गोड़ छाटिले अपन विज्ञान से शिखिबे जे अपसारित जलर ओजन अपन जो पानी हाथ पिटिले हाथ पिटिया द्वारा जो पानी अपसारित होला से आपनकर बॉडी को फ्लोट कला बा फसैकरी रखिला अपन आगु को भासिले टिके कॉन्शियस हेबे जो दि चारटा स्टेप कला पर अपन लागियो अपन बुडी जाउ नाहंती तापर अपन देखि वाह मो खुश सिखि गली खुशी रे कहि लाइक वाइज सब जो जति सब स्किल अछि से स्किल को अपन को निज को करे पड़ो। जेमति हम स्पीकिंग इन इंग्लिश हम कहू सेटा गोटे स्किल, तो से स्किल को अपन कोन करे पड़ो, अपन मन को इंग्लिश रे कहयो को पड़े। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू माने आपण बुझी पर नांती कहि करी बा ओडिया रे कहले मु कहि परथंती बा हिंदी रे सर मु बेटर कहि परबी। सो हमें सेमती दे परन जदी मिली गला सेमती सुजोग कि जदी टिके भलो हेइ गेले से होय तो कहि पारंती जे आपण माने टिके ये करदु टिके लोकल लैंग्वेज रे कहि परिबे कहि देबे ताले सुविधा अछि। किंतु जदी से भले सुविधा नाही त हम कोन करबा? हमको इंग्लिश कहे पड़ो। तेणु व्हाई शुड वी नॉट बिगिन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एबे जोटा आपण माने लर्निंग स्टेज रे अछंती बोली मैं कथाटी कहूची। कारण जो प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब रे आसीबो फर्स्ट कांसेप्ट आसीबो जे आपण तो क्वेश्चन टा सुनिबे ना, तो क्वेश्चंस नोबडी आस्क्स यू इन हिंदी, क्वेश्चंस आर ऑलवेज पुट इन इंग्लिश। आप अगर इंग्लिश में हिचकिचा रहे हैं बोलने के लिए तो कोई हिंदी आपको बोल सकता है, या आप रिटन में बहुत ज्यादा क्वालिफाई किए हैं तो उसी हिसाब से आपको ये चांसेस मिल सकता है। तो आपको पॉजिटिव साइड में क्या है, प्रिपेयरिंग कैसा करना पड़ेगा, द सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्राइटेरिया फॉर द विनिंग कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब देखिए एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट। परिवेश आपके हिसाब से होगा ये जरूरी नहीं, आपको परिवेश को अपने तरफ खींचना पड़ेगा। आपको कन्विंस करना पड़ेगा जो लिसनर रहेंगे या इंटरव्यू बोर्ड पे जो रहेंगे, तो उन लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप किसी भी सांचे में ढलने के लिए तैयार हैं, तब जाके आपसे ये मिल सकता है, मतलब इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट। तो बाकी क्वालिटी ऑफ 3C पॉइंट आउट करके रखिए, नोट करके रखिए या लिख के रखिए, जो कॉम्पिटेंसी, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब है कि अपने आप का आधारभूत चीज बढ़ाना। जैसे किसी एक बोतल में लेके गया हूं दुकान और बोतल में 1 लीटर का पानी या तेल पकड़ेगा, मतलब तो मैं अगर दुकानदार को 2 लीटर दे दो बोलूंगा तो कहाँ देगा वो मुझे, तो बाकी का जो डालेगा तो उछलेगा ना। तो कॉम्पिटेंसी मतलब अपना आधारभूत सीला जो है, आधार जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा बेस्ट। तो आपको वो कॉम्पिटेंसी मतलब कि कम्पीट करने का जो क्षमता होता है, जो ताकत होता है, जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइटिंग, आपको जॉब के लिए मुझे खाली ख्वाहिश रखें, ड्रीम करके बैठे नहीं मुझे एक अच्छा जॉब अगर मिल जाता, तो जॉब कैसे मिलेगा? जॉब को मिलने के लिए यू हैव टू प्रूव योर कॉम्पिटेंसीज। तो आप कम्पीट करने के लिए तैयार हो, ये हर बार रेडी रहना पड़ेगा कि आज ही भी कोई अगर आता है और आज ही आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, मैं तो प्रिपेयर नहीं हूँ, डोंट स्पीक लाइक दैट। बी एवर रेडी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि एवर रेडी रहना। एंड कामनेस का मतलब होता है कि आप अगर काम नहीं रहोगे तो नर्वस हो जाएगा। जैसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक सच बता दे रहा हूँ कि जैसे काउंसलिंग होता है, तो मैं काउंसलिंग के लिए आया, दिस इज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस काउंसलिंग इग्नो स्टूडेंट्स। तो मैं बोला नहीं, मैं पहले तो कभी नहीं किया हूँ, कैसे करूंगा, बच्चे लोग क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, कैसे होगा, मैं अगर ये होगा वो जाऊंगा, तो दैट यू फील नर्वस। तो
आप एक बार नर्वस हो जाओगे, दैट मीन्स यू विल लूज द स्किल। अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास आता है जो ब्रेव होते हैं, ब्रेवली फेस करना सीखते हैं। ब्रेवनेस कैसे आएगा? तो ब्रेवनेस का मतलब ये नहीं होता आप फाइट करके जाओगे, तो आपको काम एंड कूल, आप सुनो पहले क्वेश्चन क्या है, आप सुनो पहले, समझो, इसके बाद जो अपना दिमाग से आता है उसको बोलने के लिए कोशिश करो, और तब जाके आप बोल पाओगे। तो कामनेस बजाय रखना थ्रू आउट द पीरियड, आप काम होना, आप अपने आप को डोंट डोंट ओवर एक्सक्यूज और ओवर डू योरसेल्फ बाय योरसेल्फ सेइंग आई कैन डू दिस। Once you say I can't do this, means it will never come to you again. Then the other three is the third C, competency, calmness, दो C गया, third C is confidence. ये याद रखो, keep this in mind that nobody teaches you confidence. कॉन्फिडेंस अपने आप को बिल्डअप करना होता है, कॉन्फिडेंस कोई नहीं सिखाएगा। हम भी जो सी के लिए बैठे हैं, एक सी मेरे पास है, मैं अभी एक सी के साथ बैठा हूँ काउंसलिंग, तो मेरा काम होता है कि काउंसिल कर देना, देखो बच्चे ये लिखोगे, ऐसे लिखोगे, बुक नहीं है तो ज्ञान को उससे डाउनलोड कर लो, पिछला बार का क्वेश्चन मिल रहा है तो डाउट है, मैं कल भी हूँ, 6 दिन के लिए रहूंगा, कोई एक बुक का भी क्वेश्चन है तो मुझे कल भी पूछ लेना, तो आई कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। बट आपका जो कॉन्फिडेंस है कि पूछना क्या है, कैसे पूछें, कि मेरा जरूरत ये है, तो ये बात कॉन्फिडेंस कोई नहीं सिखाता। कॉन्फिडेंस अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है। यू विल हैव टू बिल्ड अप योर ओन कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, हैबिट करने से आएगा। तो अभ्यास, जितने ज्यादा बार अभ्यास आप जारी रखोगे तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ऐसे हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि इंग्लिश में बोलना, तो आप अगर इंग्लिश में बोलने के लिए कोशिश करोगे, फिर एकदम छोटा छोटा सेंटेंसेस होता है, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू योर फैमिली मेंबर्स। अपने अपने बच्चों के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे घर में रहे होंगे, कोई सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, कोई भी तो होते होंगे ना, तो उनके साथ बात करके देखो। कभी कभी हमें वी फील असेम्ड ऑफ टू टॉक टू द यंग बॉयज एंड गर्ल्स दोज हु आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। वो लोग गलती नहीं करते। माय पॉइंट इज नॉट टू टेल यू दैट वो लोग गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं। वो इनके छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे KG1 KG2 या क्लास 1 में जो बच्चे हैं, उन लोगों के स्कूल में कभी कभी तो उनको इंग्लिश में जो बताते हैं, तो वो इंग्लिश को वो लोग कुछ समझते हैं ना, फिर हाँ उनको हिंदी ज्यादा बोलना पड़ता है, बट यू स्टार्ट विथ तो छोटा छोटा सेंटेंस करो। तो why should you always worry about that? Whenever I will have to speak in English, I have to speak English in 100% correct way. It doesn't matter. Make 2, 3, 4, 5, 6 mistakes even. Even if you say a 10-word sentence, let it for granted that 10 में से 10 वर्ड गलत रहेगा, लेकिन बोलना इंग्लिश में है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो एग्जैक्टनेस या करेक्टनेस आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, हैबिट के साथ बढ़ेगा, वो एक स्किल होता है। तो स्किल को एक्वायर किया जा सकता है, तो इसके लिए डेडिकेशन जरूरी होता है, हार्ड लेबर जरूरी होता है, डिटर्मिनेशन जरूरी होता है। वैसा होता है बहुत बार आपको ऐसे भी होगा, एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आप आ जाओगे, लोग हंस पड़ेंगे कि बोलना नहीं जानता है तब भी इंग्लिश बोलता है। Till then, if you continue to stick to speaking in English, you can. And obviously अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो ये कोर्स खत्म करने के बाद जैसे ही आप जॉब सिनारियो तक आओगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे या जॉब के लिए जाओगे, जहां भी जाओगे, क्वेश्चंस विल ऑलवेज कम इन इंग्लिश। एंड इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक इन इंग्लिश और अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, और आपका बात अगर आप इंग्लिश में प्लेस नहीं कर पाओगे, इन मोस्ट केसेस यू मे नॉट बी एबल टू गेट द जॉब, even if you have the talent, even if you have the recorded marks of 70%, 80%, 85%. So आजकल का जो दुनिया होता है वो एडवर्टाइजमेंट का दुनिया होता है, अपने आप को सेल करना। इन सिंगल सेंटेंस इफ आई कैन से, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। अपने आप को बिकाऊ बनना। कैसे आप अपने आप को सेल करोगे? अपना टैलेंट को, अपना कॉम्पिटेंसी को, अपना कॉन्फिडेंस को, अपना क्रिएटिविटी को। जो लोग सब एडवर्टाइजमेंट मतलब कि फिल्म के दुनिया में हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या ये सब के बारे में होते हैं, तो उन लोगों के पास क्रिएटिविटी है और उन लोग नए तरीके से, इनोवेटिव हुए, दैट इज व्हाट, एक नए तरीके से सोचना। तो ये नए तरीके से सोचना, कोई क्वेश्चन आया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप लोग क्या बनना चाहते हो? तो माई एम इज टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई कैन टेल लाइक दैट। बट गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट का सर्विस होता है, बहुत सारे सेक्टर में होता है, तो यू शुड आंसर इन सच ए वे दैट क्रॉस क्वेश्चन का चांस क्यों दोगे? एक साथ बोलोगे कि भाई आई वांट टू बी एन IAS, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो IAS ऑफिसर होना क्या? अच्छा, आपको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAS? यू विल से
आई फॉर इंडिया, ए वहां जाके अगर फंबल करोगे तो नोबडी विल गोइंग टू गिव यू। तो यू मस्ट नो दैट आईएएस ऑफिसर क्या होता है, उनका जॉब चुनाव में आईएएस क्वालिफाई करने से क्या क्या जॉब मिल सकता है, आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक जो आईएएस होता है, जैसे आपको पता है कि आईएएस होने से कलेक्टर होते हैं, तो कलेक्टर क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। तो पब्लिक सर्वेंट होने का मतलब क्या होता है, यू विल वर्क फॉर द पब्लिक। तो पब्लिक के लिए काम करने के लिए करना क्या होता है पहले, तो पब्लिक को मतलब अपने आप का जो क्रिएटिविटी है, अपने आप का जो टैलेंट है, अपने आप का जो भी है, मतलब आप पब्लिक के लिए डालोगे, मतलब उसको पब्लिक की हेल्प में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के स्वार्थ में, पब्लिक के काम में आप आओगे, ये आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। तो व्हेन यू से व्हाट इज योर एम, से इट, बी टिपिकल टू द एम। अपने नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चलेगा, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कभी भी निकाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब आप पीओ से लेकर के बड़े तक सोचोगे, तो आपका सोच जैसा होगा आप उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। मतलब माय पॉइंट इज, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड बी द पियोन ऑलवेज, डोंट टेक इट अदरवाइज। माय पॉइंट इज टू हैव द बिग एम्स विथ यू। जो एम है आपका वो बिग एम आप रखो, एंड वो बिग एम के लिए जो करना पड़ेगा, मतलब कॉन्फिडेंस हुआ, लेबर हुआ, डेडिकेशन हुआ, पंक्चुअलिटी हुआ, सिंसियरिटी हुआ, ये सारे चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, अपने आप को करना पड़ेगा। आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, कुछ नॉलेज दिया जाएगा, कुछ असिस्टेंस मिल जाएगा, कुछ थपकी मिल जाएगा पीठ पीछे कि हाँ बच्चे सही रास्ते पे जा रहे हो, आगे बढ़ो, हम हैं। तो हम होने का मतलब होता है कि हम आपको गाइड करने के लिए हैं। हाँ, हम आपको, आप अगर गिर जा रहे हो तो हम आपको उठाने के लिए हैं, वी आर देयर टू लिफ्ट यू, but we will not sit with you in front of the interview panel। मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत 20 25 50 क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, कोर्स जैसे कवर होता है तो 50 क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ, जैसे 50 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, 50 इंटरव्यू क्वेश्चन, उसी में से 5 to 10 आएगा, लेकिन इसका आंसर भी बता दूंगा, स्टैंडर्ड आंसर। लेकिन जाके जो बोलना होता है इंटरव्यू पैनल में सामने बैठ के, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, आपको करना पड़ेगा। आप वहां जब जाकर के बैठोगे तब आप कांपते रहोगे, तब प्रिपेयर नहीं हो जाओगे। शायद ये क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी ना पता था सर, आप वही बताए थे, सही बताए थे सर, लेकिन हम इसको पढ़ के नहीं गए थे, बाकी चीज पढ़ के गए और वो क्वेश्चन आया, जो आप पहले से बोले थे 2 4 जितना आया वो बोल दिए, बाकी का सब छोड़ दिए, या डर गए पहले से। हम तो थर थर कांपने लगे सर, और गला सूख रहा था, तो क्या करें, क्लिक कैसे करें। दैट इज व्हाट पीपल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का ये जाएगा, तो मस्ट एग्जिबिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए कैंडिडेट मस्ट एग्जिबिट फ्रेंडलीनेस, courtesy, genuine interest in the other person's good listening skill, ये सारे आपके पास होना चाहिए। मतलब unless and until you listen beautifully you can't be able to speak beautifully। आपको सुनना पड़ेगा पहले, बहुत सुनो। इसलिए हमको बोला है 2 कान दिया गया है, लेकिन बोलने के लिए जो तरीका होता है, एक माउथ होता है, उसमें एक टंग होता है, वो बोलने के लिए वही हेल्प करता है। और that has been kept under the boundary wall of 32 teeth, that is to say, ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଜିଭ ହଉଛି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା, ଜିଭକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି 32ଟା ଦାନ୍ତର ପାଚେରୀ ଭିତରେ, ବିକଜ ସେ କୁଆଡେ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେମିତି ଦରକାର ସେମିତି କହିକି ଶିଖିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା। ଲୋକ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତମକୁ ଶୁଣିବ ତ କାହିଁକି ଶୁଣିବ, ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଥା, ଯଦି କିଛି ଦରକାରୀ କଥା, ଯଦି କିଛି କାମର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, nobody will listen to you। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହି ଚାଲିବି, ବହିଟା ଧର କହିକି ଚାଲିବି, ତମକୁ ଯଦି ସେ ବହି ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଦରକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତମେ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବ, ତାପରେ will simply left out, ମଝିରେ ଚୁପଚାପ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ଇଏରେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବୁ someone left, ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଧର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିବା, ତ ଆମେ ସେମିତି ଆଶା କରିବ, ତମେ ରେପ୍ଟ ଆଟେନସନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିକି ପଚାରୁଛ କଣ ଦରକାର, ଏମିତି ଦରକାର କହିଲେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସକୁ ମୁଁ ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଧରିକି ହୁଏତ ଆସିବି, ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଦରକାର ହବ, ତ ମତେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। So that is what we call thinking other person's view। And now must not, what you should not do, you should not feel powerless। नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे पता नहीं, आमे सर देहाती छुआ ओडिया ये नु आई छु, गाँ नु बाहर छु, आमे तो बुझी नहीं पारबार ओडिया ठीक से, आउ केनता करमु, तो बुझी नहीं पारबार बुझिया पे कोशिश करिवो, चेष्टा करिवो केमती करा जाई परिवो। आ सेमती भाबिले फीलिंग पावरलेस, तमे जदि निजे निजको पावरलेस फील करिवो जे नहीं आमो देई हबो नहीं सर, आमे सर कोठु आसी छु सर, आमे तो पढिनु रेगुलर क्लास रे, आमे तो इग्नू रे सर पढिलु,
एमती पढ़िलु बहीटा पढ़िलु ये दे देलु से करदेलु इग्नोस बुक आर द बेस्ट बुक्स पाखे से बही अच्छी से बही गुड़ा तो देखो टे मझे मझे पढ़ु कोर्स सरीगला भी बही मैंने पढ़ु बही गोटे बुक हैज इटरनाल वैल्यू आम कह आम गोटे भारी बढ़िया हैबिट अच्छी ए वर्ष क्लास पढ़ा सरला बहीटा को तुरंत बिकी दूँ बही जो नुआ नॉलेज थिला से नॉलेज अच्छी से नॉलेज लाइफ सारा काम को आसी परिबो वी डोंट थिंक लाइक दैट तो से निज को अपन यू डोंट फील पावरलेस ओवरवेल्म द इंटरव्यूअर बाय बॉडी लैंग्वेज आपको इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज एक चैप्टर आएगा अगली क्लास में कल परसों जैसे 2-3 क्लास जब आएगा उसी में इंटरव्यू का बारे में आएगा डिटेल्स में क्लास आएगा तो डोंट ओवरवेल आप ऐसे बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाओ वहां जाके जैसे कि आपको कोई बुड़बक गधे या व्हाट आई कैन से नॉन स्मार्ट ऑन स्मार्ट जैसे समझेगा मतलब डल एंड बोरिंग अगर लगेगा तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू दुनिया डायनामिक लोगों के पीछे भागता है कि जो कार्यदक्ष है जो काम कर पाएगा जो अच्छे से बोलता है जो बढ़िया से बोलता है दैट आई कैन से उन्हीं का होता है जैसे तो आप अपने आप को अगर अंडरमाइन कर दोगे नहीं ये नहीं होगा तो वर्बली डोमिनेट द मस्ट नॉट वर्बली डोमिनेट आप अगर कभी भी कोई ऑड सिचुएशन आ जाए आप टेबल पीट के मतलब अपने आप का मत साबित करने कैसे आप बोल सकते हैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं ऐसे नहीं बोल सकते हम आए हैं यहाँ क्या करने के लिए आए सो डोंट ओवर रिएक्ट एंग्री होकर के आप इंटरव्यू बोर्ड में अगर किसी भी आदमी के साथ बात कर लेते हैं तो समरली विल बी रिजेक्टेड तो आगे चल के एक ब्लॉक है इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे लेकिन बात ये होता है कि कम्युनिकेट एग्रेसिवली या पैसिव आप क्रोधित होकर के बात नहीं करना और पैसिवली भी बात नहीं करना जैसे अब तक कोई नहीं जाता है तो आपको मान लो मतलब जैसे आप लोगों में से कोई लेडीज लोग रहे होंगे आप जो मैंने मतलब गर्ल्स जो है बैठे हुए हैं उनको इंटरेस्ट नहीं होता है थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है और दूसरा पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप तो बोल नहीं पाओगे कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए डोंट आस्क मी पॉलिटिकल क्वेश्चंस बट किसी ने अगर मान लो किसी ने एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि डू यू लाइक नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है नरेंद्र मोदी जी तो आप मत बोलो कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे नहीं है दैट इज व्हाट वी कॉल पैसिव स्पीकिंग से इट इन ए पोलिश वे hey Narendra Modi is good he has got so many number of votes or he is doing well as prime minister but so far as my concern my personal belief जैसे person to person differ करता है sir so what I want to say I don't personally like him so much but overall he is doing well than other in relation to other prime ministers they are doing because they have their limitations also हर एक पोस्ट का खुद का लिमिटेशन होता है हम जैसे सोचते हैं ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों नहीं कर देते हैं तो ऐसे नहीं होता है हर लिमिटेशन होता है सो यू कैन से दैट हाँ ही इज डूइंग वेल सर but he might have his limitations but I personally if you are serious about or if I can tell you the truth sir I don't personally like Narendra Modi you can say like this say this is what we call actively participating in the debate and saying it in a beautiful way so that you said that you don't like but you said it in a police way आप किसी के लिए मना भी किए लेकिन ऐसे मना किए कि किसी को खराब नहीं लगा मान लो जो आदमी पूछ रहा है वो क्वेश्चन वो बहुत बड़ा एडमायर रहा होगा बहुत बड़ा प्रशंसक रहा होगा नरेंद्र मोदी का आप अगर डायरेक्टली उसको बोल देते हो कि नहीं नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी नहीं है तो यू विल समरली जो 10 मार्क का मार्क देने वाला होता है वो तो आपको 0 दे के छोड़ देगा कोई एक आदमी आपको जो 0 दे देता है तो आपको आगे चल के बढ़ नहीं पाओगे आप तो थोड़ा बहुत आगे जो चैप्टर आएगा उसी हिसाब से हम जो ब्लॉक आएगा सेकंड ब्लॉक जो आएगा उसी ब्लॉक में हम बात करेंगे जैसे कि इंटरव्यूज में कैसे कैसे हम कर सकते हैं ये अगर ये बुक किस किस के पास है तो आप देख लो और नहीं तो आप आज डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो ई बुक के हिसाब से ये ज्ञान कोश के जा करके और कभी कोई डाउट है क्वेश्चन है तो आप कल भी पूछ सकते हो लेकिन आज जितने भी हम बात किए जितने भी आप लोग सुने अगर आप में से कोई मतलब किसी को कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क और कल के लिए मैं पहले से बता के रख देता हूँ कि कल जो है कल हम बात करेंगे ब्लॉक 2 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस ये ब्लॉक 2 का आज 2 चैप्टर 5 और 6 चैप्टर नंबर 5 एंड 6 अगर वो होता है खाली उसी को डाउनलोड करके पढ़ लो वो होता है प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज जैसे आज हम
जब इंटरव्यू क्या होता है, जब के लिए इंटरव्यू होना पड़ता है। तो कल मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू होता क्या है, आपको क्या करके जाना पड़ेगा, तैयारी कैसे करें इंटरव्यू के लिए, और किस टाइप का तैयारी रहना चाहिए। तो व्हाट बुक्स, हाउ टू होल्ड योर पर्सनालिटी, आप ड्रेस कैसे पहनोगे, किस टाइप का जूते पहनोगे, किस टाइप का हेयर स्टाइल रहेगा। आप हाथ, जैसे मैं जितने बार हाथ में हिला रहा हूँ, आप अगर देख रहे हो मुझे तो आप हाथ हिला सकते हो, नहीं हिला सकते हो। जैसे कभी कभी टैपिंग ऑन द टेबल कर सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत सारे बात होता है इंटरव्यूज के लिए। तो सम डूज एंड डोंट्स अबाउट द इंटरव्यूज। 4 लोग इसी में भी जैसे होता है, आप लोगों को पहले से पता है कि एक बुक होता है, एक बुक का 4 चैप्टर होता है। कल सुविधा के लिए, जैसे इंटरव्यू आगे आपको बहुत बार यूज में आएगा, इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट करके बात करेंगे। कल 2 यूनिट 5 एंड 6 हो सकता है, तो ये बुक को आप डाउनलोड कर लो, आज पढ़ लो डाउनलोड करके, या नहीं तो आपका हिसाब से जो मोबाइल के जरिए पढ़ लो, पढ़ के क्वेश्चन रेडी कर लो, या नहीं तो क्वेश्चन जैसे ही सुनते जाओगे कि इंटरव्यू ये होता है वो होता है, तो आसान रहेगा कि हम थोड़ा बहुत और कुछ ज्यादा बात कर सकते हैं। एंड आई विल बी ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विथ यू एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको ये सब स्किल जो है आगे चल के काम में आएगा। तो कल का जो चैप्टर रहेगा इसमें कम हिंदी कम उड़िया रहेगा, ज्यादा इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू सब इंग्लिश में होता है। और आपको जो टिप्स मिलेगा वो भी अगर इंग्लिश में मिलेगा तो आप आगे जाके उसको यूज में लगा सकते हो। नहीं तो ज्यादा बहुत उड़िया हिंदी बोल के बोल दूंगा, आप समझ जाओगे, लेकिन जैसे ही यूज करने का बात आता है या बारी आएगा आप कर नहीं पाओगे, फिर मुझे गाली दोगे कि सारा अच्छे से बताए नहीं। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, जैसे हम जितने भी बात किए, आई कैन समराइज इट विद 2-3 पॉइंट्स। 2-3 मिनट खाली आपका ले रहा हूँ। तो गुड इवनिंग। ओके ओके रुको, हाँ, रुको, मुझे खाली बोलने दो, खाली जस्ट जो जो आप सुने मतलब मैं बोल देता हूँ कि अपने आप का प्रोफाइल, जो जॉब प्रोफाइल है, अपने आप का जो मतलब बायोडाटा या प्रोफाइल, कैसे अपने आप को बनाना, कैसे बात करना, इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर रहना, क्वालिटीज क्या है, पर्सनल क्वालिटीज क्या है, और जो प्रोफाइल हम सुने, मतलब बिल गेट्स का सुने, सानिया मिर्जा का सुने, नारायण मूर्ति जी का है अभी बुक में, तो इसको हम पढ़ें क्यों और कैसे सर्च करें, तो अगर सर्च करने के बाद क्या क्या चीज करें, और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हुए। ओके, Good evening, sir. I okay. am Bharat pursuing BCom G हेलो, from. Yes, sir. This is Bharat pursuing BCom G. विक्रम, And thank you. BCom G, sir. अच्छा विक्रम जी, हाँ Yes. And thank you for the first online classes I am having this for first time. Sir, my question in all the books there are some audio activity also. हाँ, जो ऑडियो एक्टिविटीज होता है ना, सुनो, जो ऑडियो एक्टिविटीज होता है, ऑडियो एक्टिविटीज के लिए देयर आर ऑडियो एक्टिविटीज, बट उसके बाद जो पीछे जो आंसर दिया गया है उसमें टेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख दिया है ना। ऑडियो तो अवेलेबल नहीं है आपके साथ, वही बात कर रहे हो, तो ऑडियो नहीं मिल रहा है बोल के। Yes, sir. हाँ, तो इसमें देखो वो टेप स्क्रिप्ट बोल के जो आंसर पोर्शन है ना, तो आंसर पोर्शन में एक टेप स्क्रिप्ट लिख दिया है, तो उसमें वो जो है उसी के बारे में है। मतलब जैसे ये जो बुक अगर आपके पास है, अगर मैं जो बुक अभी 136 का जो बात कर रहा हूँ, उसमें सानिया मिर्जा का फोटो है, लिसनिंग अबाउट सानिया मिर्जा दिया है ना, तो उसका टेप स्क्रिप्ट देखो 15 नंबर पेज में है। 15 नंबर पेज में देखो टेप स्क्रिप्ट लिख के लिखा है पूरा, हाय आई एम सानिया मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद इंडिया, ऐसे करके दिया है पूरा। तो ऑडियो जो है, ऑडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑडियो में जो जो है वो टेप स्क्रिप्ट के बारे में करके आंसर सेक्शन में दिया गया है। ठीक है सर। ओके ओके, सर ये जो बीएससी का एक कोर्सेस है, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, सर बीकॉम जी का कुछ पर्टिकुलर कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इंग्लिश कॉमन है, जैसे इंग्लिश के लिए बीए बीकॉम बीएससी, ये इंग्लिश तो कॉमन है सर, बट मैं बोल रहा हूँ कि बीकॉम जी का बाकी जो कोर्सेस है उसका कुछ ऑनलाइन क्लासेस या कुछ क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे चल के होगा। आपका रेस्पॉन्स देख के आगे बढ़ेगा ना, ऐसे इग्नू भी मैंने इंस्पायर्ड फील करेगा कि बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जाके आगे बढ़ेगा ये क्लासेस। वो सही है, बट क्या है एक्चुअली वी हैव द बीए क्लासेस। हम यहाँ का जो है, हम बीए क्लासेस है, हमारे बच्चे के लिए स्टार्ट किए थे, इग्नू आप लोगों के लिए भी अवेलेबल करा दिया, मतलब ये चीज। जी सर, वो उसके लिए तो चलिए एक आइडिया हुआ। आप वो हो सकता है कभी भी कल परसों ऐसे करके भी, या आगे चल के भी आप कॉमर्स के लिए भी क्लासेस आ सकता है, आप लाइन पे रहिए, हो जाएगा।
Thank you, sir. ओके कोई आज के जो सुने इसके बारे में और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे आज जो मैंने जहाँ सब शुणिल तार किसी प्रश्न अच्छी कि तो ठीक अच्छे आम बंद करवा काली किंतु काली पई काली ब्लॉक 2 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस आपण मन दरकार जिनस हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू को केमती रेडी हेकरी जिबे तेणु सेटा दरकारी जिनसटिए सेतरे हम केवल 5 नंबर यूनिट 6 नंबर यूनिट खाली 2टा यूनिट मात्र डिस्कशन हबो तो ई ज्ञान कोश रु डाउनलोड करिकरी आपण माने आज दया करके सेटा टिके पढंतु देखंतु सो दैट आपण को दरकार रे आसीबो एगुडा सब हम सेति पई करिछु ई जिनसटी so please take note of it and then if you have any question any queries regarding subject आप जो सुने और बही मिलू नहीं केमती कहबा असाइनमेंट ताको छाडी करी बाकी क्वेश्चन पचाओ आज जो पढ़ाला क्लास ठीक से बुझियला कि कौन आउ दरकार अछि जदि आज की बही रखि नांती काली की बही देखि करी क्वेश्चन पचारले भी चलिबो काली रो पई जॉब इंटरव्यू को केमती जीवो से भले डिस्कशन हबो एवं with this we come close to the today's discussion. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.